अन्य राज्यों से पंजाब में काम करने आए जो प्रवासी मजदूर और लोग कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगने के कारण फंस गए थे और घर वापसी करना चाहते थे, उनका होशियारपुर के मुकेरिया में एसपीएन कॉलेज में मेडिकल चेकअप और रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसके बाद सरकार के साथ संपर्क कर उनको रेल के माध्यम से अन्य राज्यों में भेजा गया। करीब 400 के करीब लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप करवाया और अपना प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन भी करवाया। सर इत्थे साडे फादर बीमार है तो उनका पता लैन आए ही तो फिर असीं इत्थे फस गए ही तो असीं हुण अपने उधर विजयपुर जाना चाहते वापस डिस्ट्रिक्ट सांबा च। हाँ जी, तो सानूं वापस भेजा जाए। आज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो? हाँ जी, असीं अज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इत्थे। ਅੱਜ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ? एसडीएम साहब ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਬੁੱਢਾਵਾੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀਐਨ ਕਾਲਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫੇਸ ਮੈਨਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਬੈਚਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 200-250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ 100-150 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਟਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆਏਗਾ ਸੈਂਪਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਐਨ ਕਾਲਜ ਆਪਾਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਰਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਟਰ 2-2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ जाएगा। लॉकडाउन 3 लागू होते ही सरकार ने कुछ राहत दी और कुछ दुकानें खोलने की छूट भी दी, जिसमें शराब की दुकानें भी शामिल हैं जिनको खोलने की अनुमति मिल गई। लेकिन शराब की दुकानें खुलने के बाद लोग लॉकडाउन का पालन करना भूल गए। ताजा मामला यूपी के बांदा का है, जहां लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें भी बंद कर दी गई थी, लेकिन शासन के आदेश अनुसार अब शराब की दुकानें खोल दी गई। इस खबर को सुनते ही जनपद के शराब पीने वाले लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इसी को देखते हुए जनपद की समस्त दुकानों का जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा चेकिंग करने का काम किया जा रहा है। इस चेकिंग के दौरान दुकानदारों के द्वारा यदि कोई भी कमी सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज से शराब की दुकान खोलने का आदेश हुआ है, आदेश जारी कर दिया गया है और ये सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन के उपरांत की दुकान खोलेंगे, सोशल डिस्टेंस बंद कराएंगे। ये संदेश भी इनको देना है। प्लस बीच में मीडिया में खबरें भी दारू की निकली थी कि ब्लैक बिक रही है, यहाँ हो रहा है, उसके सापेक्ष मतलब पारदर्शिता रखी गई थी प्रशासन द्वारा। उस समय इनको बंद कर दी गई थी, उसको सील भी लगा दी गई थी और आज खोलने से पूर्व उसका प्रति सत्यापन किया जा रहा है, जिससे कि स्टाफ में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि इस दुकान में कोई गड़बड़ी मिली है, उसका कहना ये है कि मतलब वो उस दिन का हमने स्टॉक नहीं चढ़ा, बिक्री का स्टॉक नहीं चढ़ाया है, तो उसको देखा जाए नोटिस के उपरांत, क्योंकि जो बिक्री हुई है उस दिन की वो अन्य जो सामान्य दिन है उनसे काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ संदेह पैदा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, पूरी पार्सल के साथ उनको साथ लेके हुए कोई अगर कमी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। और आज से अमृतसर में कोरोना पॉजिटिव के 214 मामले सामने आने के बाद कर्फ्यू में प्रशासन द्वारा ढील नहीं दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी। इसके अलावा बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के गले में हार डालकर उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा उनका बुखार चेक किया गया और गले में हार डालकर उन्हें केले दिए जा रहे हैं कि घर में बैठकर फ्रूट्स खाएं।
इस मौके पर लोगों का कहना है कि अब वो घर के बाहर नहीं आएंगे। वहीं गांधीगिरी करके लोगों को समझाने वाले पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे। इसीलिए लोगों के गले में हाथ डालकर उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा है ताकि वो दोबारा घर से बाहर ना आए। जी सर, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਡੂ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇਲਾ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ ਤੇ ਕੇਲੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। केंद्र सरकार की शराब की दुकानें खोलने के आदेश के बाद से 4 मई की सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि लोग सुबह 9 बजे से दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में लगे हुए देखे गए। इस तरह से कहा जा सकता है कि 4 मई का दिन शराब पीने वालों के लिए एक बड़ा दिन रहा, क्योंकि इस दिन से शराब की दुकानें खोली गईं। तो वहीं आबकारी विभाग के क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन जिन जगहों पर हॉटस्पॉट है वहां की दुकानें नहीं खोलने के आदेश भी हुए हैं। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते सोमवार को 5 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद झांसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है। इसके अलावा हॉटस्पॉट पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई। बता दें कि रविवार को झांसी जिले के 23 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट देर रात आई, जिसमें 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये सभी मरीज ओरछा गेट इलाके के आसपास के ही रहने वाले हैं। इतने मरीज मिलने के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसके चलते बाहरी कोई भी व्यक्ति इस इलाके में आवाजाही नहीं कर सकता है।